Still I will sing, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away, you give and take away, my heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Your blessed be your name. Every blessing you pour out, turn back to praise. Yes, thank you, Lord, for giving us another chance to be with you, to be in your presence. हम जानते हैं कि जो कुछ भी होगा, आप हमारे साथ रहेंगे, इससे आप हमको मदद कीजिए कि जो कुछ भी होए हम आप पे ही भरोसा करने पाए, आपके ऊपर हम अपना फेथ रखने पाए और भरोसा करने पाए कि अंत में आप हम सभी को संभाल के रखेंगे। इसको मन में रखते हुए हम आज के लिए दूसरा गाना गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Indeed, God, आपका नाम सबसे ऊंचा है। आप मिरेकल करने वाले गॉड हैं, आपके तरह और कोई नहीं है। हम प्रेयर करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमको मदद कीजिए कि अंत तक आप हम सभी को मदद करें और हमको हेल्प करें कि हम till the end of time आपके लिए ही गाएं और आपकी ही ग्लोरी करें।
और कि हम आपसे और सभी से एक दूसरे के साथ आपके किंगडम में मिलने पाए और आपकी जय गाने पाए। विद दैट हम लोग आज का तीसरा गाना गाएंगे 10,000 Reasons। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Thank you, Lord, for blessing us with so many things. आपने हम सभी को इतनी चीज से bless किया, हम लोग उन blessings को कभी नहीं काम कर पाएंगे.
और हम धन्यवाद देते कि आपने हम सभी को संभाल करके रखा है। You blessed us with countless things, with in terms of our health. आपने हम सभी को हेल्दी और सुरक्षित रखा है, और उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो लोग अभी आज का जो पैंडेमिक जिस वायरस के कारण हो रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन सभी को हीलिंग दे, अपना हीलिंग टच प्रोवाइड करें कि वो सब भी जल्द से जल्द ठीक होके आपकी महिमा में हम सभी के साथ जुड़ने पाए। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपने हमें मौका दिया पिता कि इस जूम लिंक के माध्यम से हम जुड़ पाते हैं पिता। आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, पास्टर साहब को आपके हाथ में देते हैं। उनके वचनों को, उनके मुंह से निकले हुए वचन हम सुनने पाए और अपने हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके। ये प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए सरकार में ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम आज के लिए जो हमारे लिए ठहराया गया हम उसमें जाएंगे, और यह हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 24 से लेकर 29 तक। यूहन्ना 20:24 से 29, और इस वचन को पढ़ने में अगुवाई करेंगे नलन तोपना। 20वां अध्याय उसका 24 से 29 पद, उसमें ये लिखा है, थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह पवित्र वचन है प्रभु का। हम सभी बैठ जाए, और इस समय हम आज के द्वारा आज के लिए जो ठहराया गया सुसमाचार पाठ वचन है, उसमें मनन में हम जाएंगे, और इस वचन के मनन में हमारी अगुवाई रेवरेंड आशीष आर्चर करेंगे। और हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और वे हमारे बीच हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें वचनों के प्रकाशन में लेकर जाएं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर नाम में आप सबको यीशु सहाय जय मसीह की शुभ प्रभात। परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम प्रभु की उपासना उसकी उपस्थिति में कर सकें।
और ये समय ऐसा है कि ऐसा संभव नहीं कि हम सब प्रभु के भवन में आ सकें। हम सबको पता है क्या सिचुएशंस हैं, क्या पेंडेमिक की सिचुएशन है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या डेंजर्स हैं, परंतु प्रभु ने इसके लिए इंतज़ाम किया है हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के द्वारा और जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा, और हमारे मनों में अपने प्रेम को जागृत करने के द्वारा जहाँ कहीं भी हम हैं अपने घरों में हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और आज समय, अब ये समय है कि हम प्रभु के वचन में थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। और आज का जो विषय है कि हम आज मनन करें वह है एनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड, पुनर्जीवित प्रभु से भेंट। हम प्रार्थना करें। हमारे जीविते और सामर्थी महान प्रभु परमेश्वर, हम आपके बेटे और बेटियां एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमको दिया है कि हम उस पर रोज मनन करें। प्रभु, आज की सुबह जब हम एक साथ इकट्ठा हैं अलग अलग जगहों पर, परंतु आत्मा में एक होकर कि आपके वचन के माध्यम से आपके बदन में तरक्की करें। प्रभु, हम में से हर एक को सुनने के कान और ग्रहण करने का हृदय दें, ताकि जो कुछ आज आप हमको सिखाना चाहते हैं उसको हम सीखें, अपने हृदय में स्थान दें और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। अपने लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी वेदी के पवित्र अंगारों से हमारे होठों को शुद्ध करें। हर एक ह्यूमन लिमिटेशन और हर एक ह्यूमन वीकनेस प्रभु यीशु के नाम से दूर हो और आपके लोगों के बीच में आपके वचन का प्रचार प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार किया जा सके। प्रभु यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। एनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड, पुनर्जीवित प्रभु से भेंट। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का पुनर्जीवित होना मसीही विश्वास में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इट इज अ पिवोटल थीम इन क्रिश्चियनिटी। और बिना प्रभु यीशु के पुनर्जीवित हुए, पुनर्जीवन के, और बिना हमारे विश्वास के कि देयर वाज अ रेजरेक्शन एंड देयर विल बी अ रेजरेक्शन, हमारा विश्वास किसी अन्य विश्वास की तरह है। देयर इज नो यूनिकनेस इन आवर फेथ। आवर फेथ इज जस्ट another faith if we don't have faith in resurrection. और ये resurrection जो है, ये पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह का उठना जो है, it is what that makes Christianity exceptional. जो मसीहियत को सब चीजों से अलग जो है बनाता है। जब हम पढ़ते हैं और एक सारे धर्मों की एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो मृत्यु के बाद जीवन की आशा, मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने की आशा, इस शरीर को त्याग कर एक महिमामय शरीर को पाने की आशा सिर्फ और सिर्फ मसीहियत में मिलती है। यदि हिंदू धर्म पढ़ते हैं तो हिंदू धर्म में मोक्ष है, जो आत्मा है वो पुनर्जन्म के साइकिल में बंधी हुई है। पैदा होता है इंसान, मरता है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर मरता है। कई सारे रूप हैं। और जब जैसे जैसे वो प्रभु अपने परमात्मा के समीप होता जाता है, वैसे वैसे मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस्लाम में एंड डेज का वर्णन है, जस्टिस का वर्णन है, परंतु उद्धार का वर्णन, उद्धार का कोई स्कोप नहीं है। उद्धार का स्कोप, मर्सी का स्कोप और पुनर्जीवित होने का स्कोप सिर्फ हमको और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा प्राप्त होता है। और एक प्रभु यीशु के फॉलोवर होने के नाते यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं, या हमारी उस प्रभु से जो पुनरुत्थित हो उठा, जो पुनर्जीवित हो उठा, उससे हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ। एनकाउंटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड और मेरे ख्याल से डिलिबरेटली यहां रखा गया। एनकाउंटर का मतलब है भेंट होना,
एनकाउंटर का मतलब है मुठभेड़ होना, एनकाउंटर का मतलब है अचानक से भेंट हो जाना, जब हम अनएक्सेप्शनल विजिट हो जाना, अनएक्सेप्शनल मीटिंग हो जाना। जब यदि हमारा एनकाउंटर पुनरुत्थित प्रभु से नहीं हुआ है तो एक विश्वासी के नाते हम और आप कहाँ खड़े होते हैं, आज हमारे और आपके लिए सोचने का विषय है। ईस्टर पर्व हमने इस पिछले इतवार को मनाया, जो कि एक बड़ा पर्व है। ईस्टर इज अ हाई फीस्ट, और बड़े बुजुर्गों को हम सुनते हुए आए हैं, उनको कहते आए हैं कि क्रिसमस को हम लोग बड़ा दिन कहते हैं, परंतु ईस्टर जो है वो बड़े दिन से भी बड़ा दिन है, क्योंकि ईस्टर के दिन हमारी उद्धार का जो आशा थी वो प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित होने के द्वारा उस पर मोहर लग गई। तो ईस्टर इज अ हाई फीस्ट, और ट्रेडिशनली संडे आफ्टर ईस्टर इज कंसीडर्ड टू बी अ लो संडे। लो संडे को हिंदी में कैसे कहेंगे? एक ऐसा संडे जहां पर लोगों की स्पिरिट्स लो होती हैं, जहां पर उत्साह लो होता है। हमारे चर्च में नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारी गवाही है कि हर संडे हम लोग प्रभु की आत्मा में उत्साहित होकर आराधना करने के लिए आते हैं। परंतु बहुत सारी कलीसियाओं में हमने अनुभव किया है कि जब एक बड़ा पर्व हम मनाते हैं, उसके इमीडिएटली बाद का संडे जो होता है वो एक लो संडे होता है। कम लोग आते हैं, स्पिरिट लो होती है, जो उत्साही आत्मा होती है ना, जो उत्साह होता है हमारे अंदर, वो धीमा पड़ा होता है। हम उस संडे को लोग चर्च इसलिए आते हैं क्योंकि संडे है और चर्च आना है, वो उत्साह नदारद रहता है हम लोग। और ईस्टर के बाद भी ऐसे ही होता है, हम लोग आते हैं, विजय के गीत गाते हैं, और उसके बाद पुनरुत्थित होने की बात को हम लोग भूल जाते हैं, और फिर क्रिसमस की तैयारी में कुछ समय बाद लग जाते हैं, और फिर पुनरुत्थान की आशा, पुनरुत्थान के ऊपर चर्चा, पुनरुत्थान के ऊपर मनन करना लगभग 50 हफ्तों तक भूले रहते हैं। अगले साल जब ईस्टर आने वाला होता है, लेंट खत्म होने वाला होता है, तब पुनरुत्थान की थीम फिर से हमारे विश्वासी जीवन में जो है वो आती है। और शायद इसीलिए ईस्टर के तुरंत बाद की थीम ये रखी गई है कि एनकाउंटर विद द रिजन लॉर्ड, पुनर्जीवित प्रभु से भेंट, कि हम अपने विश्वासी जीवन में उस प्रभु से जो पुनर्जीवित हो उठा भेंट करते रहे और उसकी उपस्थिति का अनुभव करते रहे। इसलिए आज की सुबह मेरे मित्रों, थोड़ी देर के लिए हम लोग मनन करेंगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिनकी भेंट पुनरुत्थित प्रभु से हुई, कैसे उनके जीवन बदल गए, और कैसे हमारे और आपके लिए ये आज बेनिफिशियल हो सकता है। हम क्या सीख सकते हैं इन चीजों से। 2-4 ऐसी बातें हैं जो वचन में पाई जाती हैं, जिनका हम लोग आज एक तरीके से रिवीजन करेंगे। हम वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। जब वचन हम पढ़ते हैं, वचन हमसे बातचीत करता, हमको वचन के बारे में पता है, परंतु कभी कभी उसको रिवाइज करने से क्या होता है ना, कि कभी कभी हर बार जब हम एक हिस्से को पढ़ते हैं तो हमें एक नया इंसाइट मिलता है। और आज भी थोड़े समय के लिए हम लोग उन लोगों को याद करेंगे जिन्होंने या जिनकी भेंट पुनरुत्थित प्रभु से हुई, और कोशिश करेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उन भेंटों को हम लोग रखें। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो पहली घटना हम याद दिलाना चाहते हैं, क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट नहीं हो सकती, परंतु सीखने के लिए शायद बेहतर है कि हम इससे शुरू करें। वो है वो 2 मनुष्य जो यरूशलेम से इम्माउस की ओर यात्रा कर रहे थे, और इनके बारे में वर्णन पढ़ने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसका 13 पद से लेकर उसके 35 पद तक। और वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये लोग यात्रा कर रहे थे, पैदल जा रहे थे, और अचानक से प्रभु यीशु मसीह इनके पास आ गया, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा दिखावा किया कि उसको पता नहीं है क्या हुआ। और ये जो चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला करते थे, शायद उन 12 चेलों में से नहीं है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे सिर्फ 12 लोग नहीं चलते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बड़ी भीड़ चला करती थी हमेशा। और शायद ये 2 लोग उसी भीड़ का हिस्सा थे, प्रभु से प्रेम करते थे और ये बिल्कुल डिजेक्टेड हैं, बिल्कुल दुखी हैं। और जब ये प्रभु यीशु मसीह इनसे ऐसा बोलता है कि क्या हुआ, तो ये लोग जो हैं बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और बड़ा सुंदर वचन में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु उनसे कहता है कि ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। और वे इतना दुखी थे कि वचन कहता है और वे उदास खड़े रह गए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करके उनको उदासी आ गई, उनको परेशानी आ गई, उनको दुख हो गया। इंग्लिश में लिखा है दे स्टूड लुकिंग सैड। और उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं सके। ये 2 लोग ऐसे हैं who are blinded। वो ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु की बातें तो सुनी थी, परंतु उसकी बातों का मर्म नहीं समझा था। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था कि मैं ये मंदिर ढा दूंगा और 3 दिन में इसको फिर से बना दूंगा, जब वो अपनी इस शारीरिक, इस भौतिक शरीर के बारे में बात करता है, शायद उसको उन्होंने लिटरल समझा था। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते करते इम्माउस तक जाते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आगे जाने वाला है। ये प्रभु यीशु मसीह को रोकते हैं, कहते हैं अब रात हो चली है तो हमारे पास रुक जा, सुबह जाना। और जब प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ता और उनको देता है, तो वचन में लिखा हुआ है पद 31 में, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। पुनरुत्थित प्रभु से भेंट होने से हमारी जो इग्नोरेंस है, हमारी जो अज्ञानता है, और उसकी वजह से हमारी आंखें बंद हुई पड़ी हैं, जब पुनरुत्थित प्रभु से हमारी भेंट होती है, हमारा विश्वास उसमें व्यक्त होता है दृढ़ता के साथ, प्रभु यीशु और परमेश्वर की दया से हमारी आंखें जो अज्ञानता से बंद हैं वो खुल जाती हैं। क्या हमारी आंखें प्रभु यीशु के जो पुनरुत्थित हो उठा है उससे भेंट के बाद खुली हैं, हमारी अज्ञानता की ओर बंद होकर परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान के प्रति? दूसरे जो लोग हैं, जो सेकंड इंसिडेंट है, वो मिलता है लूका उसके 24वें अध्याय में ही और उसके 36 पद से। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के बारे में लिखा हुआ है। बड़ी भीड़ तो चलती थी, परंतु बड़ी भीड़ में एक एलीट ग्रुप था जिसको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो प्रभु के सुसमाचार के प्रचार को दूर दूर तक करेंगे। और ये 12 एक घर में बैठे हुए हैं डर के मारे कि कहीं इनको भी न पकड़ लिया जाए कि ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे और घर में दुबके हुए बैठे हैं। और पद 36 कहता है वो ये बातें कही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु चेलों का क्या रिएक्शन है? परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। बट दे वर स्टार्टल्ड एंड फ्राइटेंड। हमारा पुनर्जीवित प्रभु के प्रति रिस्पॉन्स कैसा है? क्या हम प्रभु को ग्रहण करने से, प्रभु के बारे में बातचीत करने से स्टार्टल हो जाते हैं लोगों के सामने? क्या हम प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु की बातों को लोगों के साथ शेयर करने के समय हम डर जाते हैं कि कहीं हमारी शेयरिंग करना लोगों को ऐसा ना लगे कि ये हमारे धर्म को परिवर्तित करने के लिए या हमको किसी रीति से इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे साथ ऐसी बातें कर रहा है? Those fears are very real। हम इस बात को आज यहाँ पर कह रहे हैं तो हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम चौराहों पर खड़े होकर प्रचार करने लगे। That will not be wise। मत्ती 10:16 कहता है कि कबूतरों की नाई भोले बनो और चतुर भी बनो। Be wise as a serpent।
भोले भी बनना है, प्रभु में विश्वास भी करना है, परंतु प्रभु ने जो बुद्धि दी है उसका भी प्रयोग करना है। जब हम किसी के साथ होते हैं जिसको प्रभु के बारे में पता नहीं, प्रभु के प्रेम के बारे में पता नहीं, प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई करती है कि हम कैसे शेयरिंग कर सकें। पाम संडे के रोज जो हमारे गेस्ट स्पीकर आए थे, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा हमको बताया कि कैसे मौका उनको मिलता है या उनको मिला जब वो अपने फ्लाइट के एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, और कैसे उस मौके को उन्होंने पहचान कर प्रभु के बारे में उस व्यक्ति से बातचीत करना आरंभ कर दिया। ऐसे मौके हमारे और आपके जीवनों में भी आते हैं। जरूरत है कि हम उन मौकों को पहचाने और उन मौकों का इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु ने जो ज्ञान हमको दिया है, जो अज्ञानता से हमको हटाया है, जो अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश की ओर हमको लाया है, उस ज्ञान को हम अपने भाई और बहनों को तक उन तक जिनको इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, इस ज्ञान को पहचान सके। और इन 12 चेलों के साथ ऐसे ही होता है। ये चेले जो डरे दुबके बैठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण तक डरे रहेंगे, 40 आने वाले 40 दिनों तक, और जैसे ही इनको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, ये डरे और दुबके हुए लोग जो बात करने से घबराते हैं, चौराहों पर निकलेंगे और जोर जोर से प्रचार करेंगे, और इस तरीके का एक कमोशन उस चौराहे पर मचा देंगे कि लोग कहेंगे कि क्या ये लोग दाखरस के नशे में चूर हो गए हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। पुनरुत्थित प्रभु से भेंट इन डरे हुए 12 लोगों को एक निर्भीक प्रभु के चेलों के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फिर सुसमाचार का पाठ आज हमने पढ़ा थोमा के बारे में, टॉमस के बारे में। और टॉमस एक ऐसा व्यक्ति है हु इज अ डाउटिंग डिसाइपल, जो एक शक्की चेला है, जो एक रेशनल हमको कहना चाहिए, जो अंधविश्वास, अंधभक्ति नहीं करता, अंधविश्वास नहीं करता, और हमेशा से स्केप्टिकल रहा है, हमेशा से इसके दिमाग में शक रहा है। यदि हम यूहन्ना 11 पढ़ें, जहां पर लाजर के बारे में लिखा हुआ है, लाजरस के बारे में लिखा हुआ है, और उससे पहले के कुछ हिस्से को पढ़ें, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसको यहूदी जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि उसका पत्थरवाह करें। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चलो बैथनी को जाते हैं, क्योंकि हमारा मित्र लाजर जो है वो सो गया है। और चेले उससे कहते हैं कि प्रभु, हे रब्बी, तू वहां क्यों जाना चाहता? यहूदी तुझे ढूंढते हैं कि वो तेरा पत्थरवाह करें। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह इंसिस्ट करता है कि हम जाएंगे, और ये ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम्हारा विश्वास बढ़े। तो थोमा जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, पद 16 में कहता है चलो हम उसके साथ मरने को चलें। इसको डर है कि प्रभु यीशु मसीह को पत्थरवाह करेंगे यहूदी, और उसके साथ साथ हम लोगों को भी कर देंगे। लेट अस ऑल्सो गो दैट वी मे डाई विथ हिम। हमेशा से शक्की है। और जब इसके मित्रों ने, इसके 12 जो मित्र हैं, 11 मित्र हैं, थोमा उस समय नहीं था, को बताया तो कहता है जब तक मैं उसकी हथेली के छेदों में उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रभु के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करूंगा। अपने इंटेलेक्ट पर भरोसा करना अच्छी बात है, अपने विजडम पर भरोसा करना अच्छी बात है, परंतु अपने प्रभु पर भरोसा करना भी हमको और आपको आना चाहिए। जब प्रभु उसके सामने उपस्थित हुआ और उससे जब टॉमस से उसने बातचीत करी, थोमा से उसने बातचीत करी, तो थोमा जो है वो चिल्ला उठा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और ने कहा तूने तो किया है, परंतु धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और यही थोमा प्रभु यीशु मसीह से जो पुनरुत्थित हुआ था एनकाउंटर के बाद, कई जगह पर घूमते घूमते भारत आता है और भारत में मसीहियत का बीज बोता है, 7.5 चर्चों की स्थापना करता है। और एक तरीके से हमारे और आपके लिए क्रिश्चियनिटी का जो है वो जो शुरुआत है, हम उस ट्रेडिशन से ना हो, परंतु उस ट्रेडिशन के हिस्से हैं लगभग 2000 साल पुराना हमारे देश में है। और टॉमस जो एक डाउटिंग डिसाइपल था, शायद उसके द्वारा बोए गए बीज की वजह से कभी कभी हम भी शक्की हो जाते हैं। हम भी प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु की करुणा में, प्रभु के उद्धार में, प्रभु के प्रेम में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा
हमारी भेंट पुनरुत्थित प्रभु से होगी, हमारे सारे शक विश्वास में बदल जाते हैं, जैसे तोमा के बदल गए। फिर ये तो नेगेटिव बातें थी कि कैसे जिन लोगों के पास नेगेटिव एटीट्यूड था उनका जीवन पॉजिटिविटी में बदल गया। दो पॉजिटिव किस्से, दो पॉजिटिव कहानियां। पहली, द विमेन एट द ग्रेव, द वंस हु वर बिलीविंग। और किसी ने कहा ईस्टर स्टोरी इज अबाउट बिलीविंग विमेन। ईस्टर की कहानी विश्वासी महिलाओं के बारे में है। प्रभु के चेलों ने विश्वास नहीं किया, प्रभु के चेलों ने प्रभु के साथ रहते हुए उसकी बातों को सुनते हुए भी उस पर विश्वास नहीं किया कि ये पुनर्जीवित हो गया होगा। प्रभु के साथ रहने वाले उसके 12 चेलों ने विश्वास नहीं किया, डर गए। प्रभु के साथ रहने वाले एक चेले ने शक किया कि जब तक मैं उसका फिजिकल एविडेंस नहीं देखूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इन स्त्रियों को एक स्वर्गदूत बोलता है और ये विश्वास कर लेती हैं और ये जाती हैं और इस पुनरुत्थान के सुसमाचार को प्रभु के चेलों को सुनाती हैं, परंतु शायद वो भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि पतरस और यूहन्ना दौड़ कर आते हैं और कब्र को खाली पाते हैं। ये महिलाएं जो हैं, ये दीज विमेन वर द फर्स्ट मिशनरीज ऑफ द गॉस्पेल ऑफ रिजन क्राइस्ट। ये महिलाएं प्रभु यीशु पुनरुत्थित प्रभु के सुसमाचार की प्रथम मिशनरीज थी। और एक ऐसे समय में जब महिलाएं जो थीं वो सेकंड क्लास सिटीजन मानी जाती थी, ना उनके पास ना कोई अधिकार थे, ना उनका कोई सोशल स्टेचर था, ना कोई सोशल स्टैंडिंग थी। उनको पब्लिक में बोलने की मनाही थी, उनको कोई इम्पोर्टेंट पद वो लोग नहीं ले सकती थी। और ऐसे समय में प्रभु ने ये तय किया कि वो इन महिलाओं के सामने पहले प्रकट होगा। वो महिलाएं जो इस वजह से गई थी कि उसकी लोथ पर वो सुगंधित द्रव्यों को मल सके, या मरियम मगदलीनी जो बैठी रही कि शायद रोमन सोल्जर्स ने प्रभु की देह को हटा दिया है और मैं इनसे मांगूंगी, क्योंकि जब हम उस एनकाउंटर को पढ़ते हैं वो कहता है कि मुझे बता दे कि मेरे गुरु का शव तुमने कहां पे रखा है। ऐसा विश्वास इन महिलाओं का हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है, जो हमारे और आपके लिए एक सीखने का विषय है। प्रभु ने ऐसा किया ताकि वो मेटाफोरिकल क्लास सीलिंग को तोड़ा जा सके, उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा जा सके जो महिलाओं को लेकर था, जो उनकी बातों पर विश्वास करने के लिए लोग राजी नहीं होते थे, जो उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। जब पुनरुत्थित प्रभु की भेंट इन महिलाओं के साथ हुई, इन महिलाओं के प्रथम मिशनरी बनने के द्वारा, इन महिलाओं के प्रभु यीशु के सुसमाचार का वाहक बनने के द्वारा ईस्टर की कहानी, प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की कहानी उन चेलों तक पहुंची और हर ईस्टर पर हमारे और आपके पास तक पहुंचती है। वो लोग जो सोसाइटी या समाज में दबे कुचले थे या सेकंड क्लास नागरिक समझे जाते थे, प्रभु ने उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी उस पुनरुत्थित प्रभु ने कि आज तक उनको पूरे संसार में याद किया जाता है। अंतिम उदाहरण जो है, जो पुनरुत्थित प्रभु से भेंट और जीवन बदलने का है, वो पौलुस प्रेरित का है, अपोस्टल पॉल का है। हमने आज उसके बारे में पढ़ा। एक धार्मिक उत्साही था, वॉज अ रिलीजियस zealot। और जैसे आज के समय में हम परसिक्यूशन देखते हैं, अपने देश में भी देखते हैं, हमको घटनाओं को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पेपर पढ़ते हैं, हम सबके पास न्यूज़ आती हैं और 75 to 80% केसेस में वो समाचार जो है वो सही होते हैं। तो इस व्यक्ति को, ये जो शाऊल है, इस व्यक्ति को बड़ा मज़ा आता है। प्रभु जो ये नया फेथ आया है, जो यहूदी धर्म मानने वालों के लिए एक ब्लास्फेमी की तरह है, जो किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र के रूप में लोग विश्वास करते हैं, उनको परसिक्यूट करता है। परंतु जब पौलुस की भेंट जीवित प्रभु से हो जाती है और पौलुस से प्रभु कहता है, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, उस पौलुस का जीवन बदल जाता है। और ये जो टॉर्मेंटर था, ये जो परसिक्यूटर था, ये जो दुख देने वाला था, ये जो सताने वाला था, जो लोगों को खींच कर बंद करने वाला था,
इसका पूरा जीवन पलट जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का वाहक हो जाता है, और जो ये दूसरों के साथ किया करता था अब इसके साथ होने लगता है। परंतु वो घबराता नहीं, डजंट वेवर फ्रॉम द पाथ, वो चलता रहता है। पौलुस किसी पत्री में कहता है कि कितनी बार मुझको 39 कोड़े मारे गए, पत्थरवाह किया गया, मरा हुआ समझकर छोड़ गए, जो नाव थी वो टूट गई, सांप ने काट लिया, रोम में जाकर उसके ऊपर मुकदमा चला, परंतु पौलुस ने प्रभु पर विश्वास करना और उसके बातों को बताना नहीं छोड़ा। उसका जीवन टर्न ऑन हिज हेड, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं, पूरी रीति से बदल गया कि एक सताने वाले से प्रभु की बात के लिए सताया जाने वाला जो है ये व्यक्ति बन गया। आज के पुराने वचन के पाठ में हमने याकूब के बारे में पढ़ा और उसका एनकाउंटर, उस डिवाइन एनकाउंटर के बारे में हमने पढ़ा। उस डिवाइन एनकाउंटर के बाद भी याकूब का जीवन बदला और एक पूरी नई प्रभु के लोगों की जो कौम थी, पीपल ऑफ गॉड थे, उनकी उत्पत्ति हुई। इट इज क्लियर that those who had an encounter with risen Lord had their lives changed. जिनकी भी भेंट पुनरुत्थित प्रभु से हुई उनके जीवन बदल गए। From people who were afraid to the people who were boldly proclaiming the gospel. वो ऐसे व्यक्ति जो डरे हुए अपने कमरों में छुपे और दुबके हुए बैठे थे कोठरियों के अंदर, वो ऐसे व्यक्तियों में बदल गए जो निर्भीक होकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। फ्रॉम टॉर्मेंटर्स टू अ ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट, एक सताने वाले से एक महान सुसमाचार का सुनाने वाला। फ्रॉम डाउटिंग डिसाइपल टू बिलीविंग वन हु ट्रेवल्ड टू इंडिया, एक शक्की चेले से एक ऐसा विश्वासी चेला बन जाना कि वो संसार के छोर तक प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए उसने यात्रा अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एंड प्रिपेयर्ड आवर नेशन फॉर द गॉस्पेल, हमारे देश को प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। फ्रॉम नोबडीज, सेकेंड क्लास सिटीजन्स, वो महिलाएं, टू द मिशनरीज ऑफ द गॉस्पेल, जो यीशु मसीह के सुसमाचार का, पुनरुत्थान के सुसमाचार का सुनाने वाली थी। फ्रॉम क्लोज्ड आइज टू ओपन आइज, बंद आंखों से, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश। जिसने भी पुनरुत्थित प्रभु से भेंट कर ली उसका जीवन बदल गया। क्या हमने पुनरुत्थित प्रभु से भेंट करी है? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? क्या आज का ये ईस्टर के बाद का आने वाला रविवार हमारे लिए एक लो संडे है कि क्योंकि एक रविवार है और आराधना होती है तो हम आराधना का हिस्सा हैं? ये हम पूरे उत्साह के साथ प्रभु की आराधना में को करने के लिए एक आत्मा में होकर सम्मिलित हुए हैं? थ्रू द वैरायटी ऑफ डिवाइन विजन्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ विल अंडरगो अ टोटल मेटामॉर्फोसिस। जब हमारे पास हमारी भेंट इस पुनरुत्थित प्रभु से हो जाती है, हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो पूरी रीति से जो है वो चेंज हो जाएगा। देयर विल बी अ टोटल मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण परिवर्तन हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारा पुनरुत्थित प्रभु से भेंट हमको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में शायद नहीं ले जाएगा, और शायद ऐसा कार्य हमको नहीं देगा जो हमको असंभव लगे। परंतु यदि हम पुनरुत्थित प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार हैं, यदि हम इसके लिए तैयार हैं कि जो पुनरुत्थित प्रभु है वो हमको चैलेंज कर सके अपने कार्यों को करने के लिए, हमारे जीवनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो जब प्रभु हमको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी नो लेस प्रोफाउंड। तो जो प्रभु के लिए हम कार्य करेंगे उसका रिजल्ट जो है वो किसी भी रीति से हमसे पहले वो लोग जिनका पुनरुत्थित प्रभु से भेंट हुई थी, किसी भी रीति से वो रिजल्ट कम नहीं होगा। द रेजरेक्शन, और तब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित होना एक संडे का अफेयर नहीं रह जाएगा, सिर्फ ईस्टर संडे का अफेयर नहीं रह जाएगा,
but it will remain with us throughout our lives. प्रतिदिन हमारे जीवन हमारे साथ साथ बना रहेगा। विचार करने का विषय, मनन करने का विषय, चिंता करने का विषय और इस चैलेंज को लेने का विषय है कि आर वी रेडी टू हैव एन एनकाउंटर विद आवर रिजन लॉर्ड एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। जैसे उन लोगों के जीवन बदल गए, जैसे वो प्रभु की सेवा के लिए उनके जीवन पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो गए, क्या हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर प्रभु के लिए ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु से भेंट करने के लिए, पुनरुत्थित प्रभु से भेंट करने के लिए तैयार हैं? May the risen Jesus meet us, open our eyes to see him and transform our vision of him. पुनरुत्थित प्रभु हमसे भेंट करे, हमारी आंखों को खोल दे और हमारे जीवन और हमारे दर्शन को जो हमारे प्रभु के प्रति है उसको पूरी रीति से बदल दे, ताकि हम अपने जीवनों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज के मिशन में प्रकाशन में अगुवाई के लिए हम रेवरेंड आसिर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सचमुच उन्होंने एक नया आयाम हमारे सोच में उन्होंने दिया है और उनके प्रवचन के द्वारा मैं समझता हूँ कि वो हमारे सामने एक चुनौती को रखते हैं। वो एक ऐसी चुनौती है जिसके द्वारा अभी उन्होंने जिक्र किया कि कई कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे थोमा है, हमारी महिलाएं हैं, शाऊल है, वो लोग के जीवन में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या हम अपने जीवन में ला सकते हैं, ये एक बड़ी चुनौती उन्होंने अपने प्रवचन के द्वारा हमारे बीच में रखा। हम उन्हें, उनके प्रवचन के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम अपने विश्वास वचन में हम जाएंगे और विश्वास वचन का उच्चारण हम अपने अपने स्थानों से खड़े होकर करेंगे। ये हम सेक्शन 12 में हम पाते हैं। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता हमारे वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और हमारे मरीज से चले। उन्होंने 500 लाख के शासन में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, तीसरे दिन वह जी उठे और काफी जाएंगे और विराजमान हुए का न्याय करने के लिए फिराएंगे। पवित्र आत्मा कर पवित्र संतों की संगति, पापों की क्षमा, देखी भूल काम और प्रभु आपके साथ हो। उनसे कभी बैठ जाएं और ये समय है आवश्यक सूचनाओं के लिए। पिछले सप्ताह में
कई भाई बहनों ने अपने जन्मदिन मनाए हैं। उनमें हम पाते हैं सोनाली लकड़ा 5 अप्रैल, अभिषेक पुनौरिया 7 अप्रैल, सपना कुमार 8 अप्रैल, अभिजीत कुजूर 9 अप्रैल, सर्जन बीबी 10 अप्रैल और निहारिका करकेटा 11 अप्रैल। कई भाई बहनों ने अपने शादी की सालगिरह भी मनाई है। उनमें है 6 तारीख को नीतीश और शर्मिष्ठा, 7 तारीख को अमन और श्वेता बारला, 8 तारीख को भाई नेल्सन और बहन सुनीता और 10 तारीख को मैं स्वयं सदय गोदन और नेल। कई प्रकार के हमारे बीच प्रार्थना के लिए अनुरोध आए हैं और विशेषकर इस समय जबकि हमारे देश में कोविड-19 का कहेंगे एक सेकंड वेव जो आया है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये पहले का जो एपिसोड था उससे ज़्यादा इंटेंस है और कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। हमारे कलीसिया के लोग भी हैं, हमारे रिश्तेदार मित्रगण वगैरह हैं। हम उन सभी को अपनी प्रार्थनाओं में हम याद करेंगे और कुछ विशेष सूचनाएं जो है, जो हमारे पास्टर साहब रेवरेंड साहू जो इस समय हमारे बीच नहीं है, वो अपने गांव गए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की दया है कि जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से वे हमारे आराधना से जुड़े हुए हैं और वे सूचनाओं से संबंधित कुछ विशेष बातों को वे कांग्रेगेशन के सामने रखना चाहते हैं। रेवरेंड साहू। मसीह में प्रियो सबको यीशु सहाय। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको आज ये मौका दिया ताकि हम आज के विशेष आराधना में हम आज शामिल हुए हैं। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं आज का जो गेस्ट प्रीचर रेवरेंड आशीष आर्चर को, जो हम सब के सामने प्रभु का वचन रखे हैं। ये कठिन समय में भी वो भवन को आकर प्रभु का वचन दिए हैं। इसलिए मैं कलीसिया की ओर से, पास्टर कमेटी की ओर से रेवरेंड आशीष आर्चर और उसके परिवार के हर एक सदस्य को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज जो ये आराधना को लीड कर रहे हैं भाई सदय टोपनो। एक कठिन समय में भी वो अकेले नहीं, अपने पत्नी के साथ आए हैं और आज का आराधना को भी लीड कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवादी हूँ। उसके साथ मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा जो टेक्निकल टीम, मीडिया टीम। एक जो समय में वो लोग आते हैं और एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा हम सबको आराधना में एक कर देते हैं। इसलिए मैं उन सबको मेरी ओर से और कलीसिया की ओर से मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु उन सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें और जितने भाई बहन घर में रहकर आज का आराधना में शामिल हुए हैं, उन सबको भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जो सर्कुलर हमको मिला है बिशप की ओर से, ये सर्कुलर के विषय में मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। जो अभी जो हम सुन रहे हैं, ये समय को कहा जाता है सुपर स्प्रेडर, कोरोना वायरस का सेकेंड वेव, जिसके बजाय हमको गवर्नमेंट की ओर से भी डायरेक्टिव्स आए हैं और बिशप भी हमको ये जानकारी दिए हैं कि आज से लेकर 30 अप्रैल तक आराधना चर्च में हमारा नहीं होगा, जूम के द्वारा हम करेंगे। जब हो पाएगा तो जैसे आज हुआ है 2-4 आदमी आकर उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, चर्च से स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम ऐसे करेंगे जब तक हमको इंफॉर्मेशन फॉर द सेकेंड टाइम हमको नहीं मिला है इंफॉर्मेशन, हमको फास्ट इंफॉर्मेशन आया है। इसी तरह हम एक काम कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए ताकि हम अच्छे तरह से ये आराधना में हम शामिल होंगे, और जब हम प्रार्थना करते रहेंगे, विल रिमेंबर आवर चिल्ड्रेन, दोज विल बी अपीयरिंग क्लास 10 एंड क्लास 12 एंड MA एग्जामिनेशन, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विल्मा, सना, आदि, प्रणीत, अभिजीत जो ICSE का 10th बोर्ड देंगे और 12th एग्जामिनेशन देंगे जोशुआ एंड अपेक्षा, और MA एग्जाम देंगे आकांक्षा, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जो भाई बहन अस्वस्थ हैं उन सब को भी हम प्रार्थना में याद करेंगे। प्रभु आप सबके साथ हों। थैंक यू सो मच। इस समय हम गीत गाएंगे। गीत संख्या नई छपाई की जो पुस्तक है उसमें 58 है, और गीत के बोल हैं, मुझे अपना दर्शन व पहचान दे दो। और इसी बीच दान ग्रहण किया जाएगा। जो दान रखना चाहें वो सामने वो रखा हुआ है, आप उसमें दे सकते हैं। अपना दर्शन व पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दर्शन मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, आकर विराजो, मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दर्शन। हे यीशु मुझे आत्मा सेवक बना लो, सेवक बना लो। हे यीशु मुझे अपना सेवक बना लो, सेवक बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे भक्ति करने कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दर्शन। मैं निर्गुण हूँ भिक्षा यही मांगता हूँ,
हे गुणवान दे दो मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो मुझे अपना दर्शन। मैं सतत जीवन को बलिदान कर दूं, बलिदान कर दूं। मैं सतत जीवन को बलिदान कर दूं, बलिदान कर दूं। मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो मुझे अपना दर्शन। मैं यदि डगमगाऊं परीक्षा में आकर, परीक्षा में आकर, मैं यदि डगमगाऊं परीक्षा में आकर, परीक्षा में आकर, मुझे दो समय बलवान दे दो मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो मुझे अपना दर्शन। हम सभी बैठ जाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान दीनदयाल पिता, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि तेरी ऐसी अनुग्रह हुई हमारे लिए कि इतनी सारी विषमताओं के बावजूद तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरी आराधना और स्तुति कर पाते हैं। न सिर्फ अकेले परंतु पूरी कलीसिया के साथ जुड़कर हम तेरी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक के लिए जिसे तूने हमारे बीच प्रस्तुत किया और उसके द्वारा तूने अपने वचनों का प्रकाश हमारे बीच तूने लाया है। और सचमुच तेरा वचन हम में से एक एक के लिए न सिर्फ आशीष का कारण है परंतु हम सभी के लिए एक चुनौती है। पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम में से एक एक को इस बात के लिए तैयार कर कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, हमारी जो कुछ भी हमारी सामाजिक परिस्थिति है, परंतु यह कतई असंभव नहीं कि हम तेरे महिमा और तेरे राज्य के लिए हम कार्य ना करने पाएं। पिता, तू हम में से एक एक को अपनी बुद्धि, समझ और विवेक से परिपूर्ण कर कि हम तूने हमारे लिए जो कुछ भी उद्देश्य ठहराए हैं पिता, हम उन उद्देश्यों को हम पूरा करने पाएं और हमारा जीवन तेरी नज़रों में सार्थक सिद्ध होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पिछले दिनों में जबकि हमारे कई प्रियजनों ने अपनी जीवन के यात्रा में एक नए वर्ष में कदम रखा है। विशेषकर हम विनती करते हैं सोनाली लाकड़ा, अभिषेक पनौरिया, सपना कुमार, अभिजीत कुजूर, सर्जन बीवी और निहारिका क्रिकेटर के लिए, जबकि वे एक नए वर्ष में कदम रखते हैं। पिता, तू उनके संग साथ हो, जैसे बीते हुए समय में तूने उनके संग साथ रहा। आने वाले वर्षों में उसके जो कुछ भी उनकी
व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक योजनाएं हैं, पिता उन सारी बातों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और होने दे कि वे तेरे अनुग्रह के अधिकारी होने पाए और तूने उनके जीवन के लिए जो कुछ भी लक्ष्य रखा है पिता, वे उन लक्ष्यों को पहचान सकें और उनके अनुसार अपने जीवनों को दिशा दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं भाई नीतीश और बहन शर्मिष्ठा के लिए, भाई अमन और श्वेता के लिए, भाई नेल्सन और सुनीता के लिए, गोदिन, नए समय और नीलन के लिए, जिन्होंने अपने जीवन के वैवाहिक जीवन के एक नए वर्ष में कदम रखा है। पिता, निश्चय ही तूने उन्हें एक वैवाहिक सूत्र में बांधकर तूने अपनी पवित्र इच्छा उनके जीवन में प्रकट की है और तूने उनके जीवन को बेहतर से इस्तेमाल किया है, न सिर्फ पारिवारिक या व्यक्तिगत दायरे के अंदर, परंतु तू उन्हें उस दायरे से बाहर निकालकर अपने बड़े कामों के लिए तू इस्तेमाल कर रहा है। हम तुझसे विनती करते हैं कि आने वाले दिनों में भी तू बहुतायत से उनके जीवन को इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं कि जबकि तूने उन्हें एक परिवार स्थापित करने की अनुग्रह दी है, उनकी जो कुछ भी पारिवारिक या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, अपने बुजुर्गों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, पिता तू उन्हें अगुवाई दे कि वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके। हम अपने परिवारों के उन सारे बच्चों के लिए भी हम तुझसे विनती करते हैं जो आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण परीक्षाओं में शामिल होंगे। हम प्रार्थना करते हैं अपेक्षा, आकांक्षा, जोशुआ, शना और भी जितने बच्चे इस समय अपनी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें आशीषित कर और होने दे कि वे अपनी अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पाएं। तो उन्हें एकाग्रता प्रदान कर ताकि वे अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रख सकें। हम विनती करते हैं बेटे प्रणीत के लिए, जो कि आने वाले दिनों में एक लंबे अंतराल के बाद अपने स्कूल को वापस जाएगा दार्जिलिंग में। पिता तो उसके संग साथ हो और उसकी पढ़ाई में तो स्वयं उसका चरवाहट है। हम अपने पादरी साहब के लिए भी हम विनती करते हैं जो इस समय उड़ीसा में हैं। एक लंबे अंतराल के बाद वे अपने प्रियों के साथ वो मिल पाते हैं। पिता जबकि वहाँ वे अपनी पत्नी के साथ गए हैं, पिता तो उनके संग साथ हो और उनके जो कुछ भी कार्यक्रम है उनमें तो अपनी आशीष दे और होने दे कि समय के पूर्णता में फिर से वे वापस बेंगलोर आकर हमसे जुड़ सके। हम प्रार्थना करते हैं पादरी साहब की बेटी के लिए भी जो बुखार से ग्रस्त है। पिता तो स्वयं उसे तो छू और उसे चंगापन प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम उन प्रियजनों के लिए जो कोरोना वायरस के प्रकोप से इस समय पीड़ित हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं बहन प्रज्ञा के लिए, उसकी दीदी प्रीता के लिए, सतीश भाई सतीश की बहन सुषमा और शबनम के लिए जो इस समय कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। पिता तो वह परमेश्वर है जिसने हमें भय से दूर रहने की आशीष दी है। तूने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। पिता होने दे कि हम पूरा विश्वास
तुझ पर बनाए रख सके, और तू जो उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करना चाहता है पिता, वे समय की पूर्णता में वो स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को पा सके। हम उन भाइयों को भी याद करते हैं जिन्हें तूने अपने पास अनंत विश्राम के लिए बुलाया है। भाई कौशिक और के भाई के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू उनकी आत्मा को तो शांति प्रदान कर, और उनके चले जाने से उनके परिवार में जो एक शून्यता है, जो एक अशांति है पिता, तू एक एक को अपनी शांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जबकि पुणे और उड़ीसा में खराब मौसम की फोरकास्ट की गई है पिता, उसे जान माल की सुरक्षा के लिए हम तुझसे विनती करते हैं, तू एक एक को अनुग्रह प्रदान कर कि वे इस खराब मौसम के प्रकोप से वे बचे रह सके। हम प्रार्थना करते हैं इन मुट्ठी दानों के लिए, जो कुछ तूने हमें दिया है पिता, हमने उसी से तेरे राज्य के विस्तार के लिए हमने तुझे भेंट दी है पिता, तो इन्हें स्वीकार कर, और जो भी कि ये छोटे हैं पिता, तो इसे आशीषित कर और होने दे कि ये तेरे कलीसिया के बड़े कामों के लिए इस्तेमाल हो पाए। हम उन हाथों के लिए भी हम तुझसे विनती करते हैं कि जिन्होंने अपने हाथ खोले हैं पिता, तो उनके हाथों को, उनके भंडारों को तो भरा पूरा है पिता। हम पूरी कलीसिया के लिए तुझसे विनती करते हैं इस समय, जबकि कोरोना की वजह से कई प्रकार की चुनौतियां कलीसिया के सामने हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तू ऐसी कठिन अवस्था में तू एक एक की संसार हो, और होने दे कि यह जो एक जिसे हम एक कठिन परिस्थिति के रूप में देखते हैं, होने दे पिता कि यह हमारे लिए एक अवसर बन सके, हम इसे एक अवसर के रूप में परिणित कर सके, और इस अवसर को हम तेरे राज्य के विस्तार और तेरे वचन के प्रचार के लिए हम इस्तेमाल करने पाए। हम तेरी इसी योजना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जबकि तूने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी पूरी मंडली को एक सूत्र में बांधकर एक प्लेटफॉर्म हमें प्रदान किया है कि हम तेरी उपासना और आराधना कर पाते हैं, और इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो हमारी जवान बच्चों की जो भूमिका रही है, उनकी भूमिका के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और विनती करते हैं पिता, आने वाले समय में भी तू उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर, और होने दे कि इस कठिन परिस्थिति को हम एक अवसर के रूप में हम पहचानने पाएँ और उसका उपयोग करने पाएँ पिता। हमारी यह छोटी प्रार्थना हमारे तमाम दूसरे पापों को क्षमा करते हुए तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तो दया से सुन और स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम आराधना पुस्तक के 17वें पृष्ठ पे जाएंगे, और उसका 17 सेक्शन क्रम संख्या 17। हे परमेश्वर, आप सबके पिता हैं, स्वर्ग का समस्त समुदाय आपका गुणगान करता है। वर दीजिए कि समस्त मानव जाति भी आपकी आराधना करे, सब राष्ट्र आपकी आज्ञाओं का पालन करें, सब जातियां आपको स्वीकार करें, और सब लोग आपसे प्रेम करें, आपकी सेवा करें, और आपने पूर्ण शांति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन।
हे प्रभु यीशु, हमारे साथ रहिए, क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हुआ चाहती है। हमारे मार्ग में साथी हो, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए और हृदय को प्रेम और आनंद से तेजी कीजिए और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य का अनुभव हमें कराइए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं। आमीन। इस समय हम प्रभु की प्रार्थना में हम जाएंगे, जो हम पाते हैं सेक्शन 14 में। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके हैं। आमीन। इस समय मैं पादरी साहब से, जो इस समय उड़ीसा से हमारे साथ बने हुए हैं, वो आशीष वचन हमारे बीच रखेंगे और हम आशीष के लिए सभी हम खड़े हो जाएं। हम सब खड़े हो जाएंगे अपना अपना स्थान पर और हम आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन।